So today we are basically going to start with Krishna Chimnani. Come on, beta. Krishna Chimnani, let's start with your work. मैम क्या दिखाऊं माइंड मैप? Yes, you have to show me and you have to explain me. यूरोप का मैम ये माइंड मैप है। सबसे पहले फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन चालू हुआ था, जिसमें न्यू एरिस्टोक्रेसी और न्यू मिडिल क्लास एमर्ज हो गए थे, जिसमें न्यू मिडिल क्लास में एजुकेशन मतलब एजुकेटेड मिडिल क्लास ने सोचा कि भाई क्यों ना फ्रेंच का भी एक अपना मतलब ऐसे नेशन जैसा बने। तो फिर 1814 1804 में सिविल कोड, नेपोलियन ने सिविल कोड वो क्या था, ये सिविल कोड लेके आए थे जैसे आपको Mm-hmm. फिर मिले। लेकिन फिर नेपोलियन ने इसको थोड़ा मतलब नेपोलियन ना ही डेमोक्रेटिकल रूल था और ना ही मतलब वो था ये मोनार्की था। तो नेपोलियन वॉर्स करने के लिए गया था, जिसके कारण वॉर मतलब फ्रांस को मैम एक्सटेंड करने का था उसकी बॉर्डर्स को। लेकिन फिर लोगों ने ये सही नहीं समझा, तो फिर उसके बाद मैम सब यूरोप ने ट्रीटी ऑफ वेना बनाई थी 1839 में शायद। तो फिर Okay. मैम ट्रीटी ऑफ वेना बनाई थी। फिर उसके बाद मैम नेशनलिज्म एंड एम्पायरिज्म हुआ, जिसमें बैल्कान्स में वॉर भी हुई थी। फिर Mm-hmm. मेकिंग ऑफ जर्मन एंड इटली, जिसके कारण इटली यूनिफाइड हुआ और फिर जर्मन भी यूनिफाइड हुआ। और फिर एज ऑफ रिवॉल्यूशन 1830 से 1848 में मैम सब राइटर्स ने सोचा कि भाई रोमांटिक फीलिंग के कारण मैम जैसे कि सब में अगर ऐसा होगा ना, तो हम ज़्यादा मतलब यूनिफाइड लोग रह पाएंगे। और एक समय ऐसा भी है जब हंगर एंड हार्डशिप का होगा, मतलब लोग इतनी अच्छे से वो कर नहीं पा रहे थे, मतलब सर्वाइव नहीं कर पा रहे थे। और 1848 में रिवॉल्यूशन हुआ था लिबरल्स का। Okay. Fine. ठीक है. Yes, Sania, can you just come up with this? Yes, ma'am. Yes, beta. Please show me. Is it visible? Yes, beta. It is visible. Shall I zoom it or something? No, 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 no. Not. No need to zoom. Please turn on your video, everyone. Yeah, beta. You can start Shall I explaining. start explaining? Yes. Ma'am, firstly, there was French Revolution in 1789, and groups were being like they wanted democracy to rule over them. Them liberalization also wanted the same. Sani, I would like to make a pause here and I would request you to please turn on your video because I want to see that mind map. You can turn your camera towards your mind map and you can start explaining from that only. So it was Yeah. some liberals that wanted democracy to rule over them, and after that, Napoleon emerged and released a code that was also known as Napoleonic Code or Civil Code of 1801, uh, and then a new conservative laws that were emerged in 1834. They were like a new Zovellian was formed. In that, it was like the new laws and taxes were removed from 32 to 2. Then the romantic imagination of the poets in the starting were emphasis of their vernacular languages, folklores, and the spirit that they had about nationalism. Secondly, there were hunger, hardship times for the people of German and Prussia. Even for Paris, the people were there were shortages of food and there were no jobs available, so people were lying all over the lanes for the jobs they were getting. Secondly, in 1848, the revolution of liberals uh, made uh, made another groups for middle class businessmen and uh, making their revolts against democracy ruling. Secondly, the Germany was to be unified, and Germany was even struggling for getting unified and getting a democracy free and getting
free. So the army helped them. Secondly, in Italy unification, the chief minister of Prussia helped the army to get unified Italy. Uh, he was not a democratic ruler, but still wanted Italy to be unified. In Sardia and Piedmont, the prince were ruling all over the country. But after democracy, it was changed. At the end, there was a strange case of Britain. Britain was not officially emerged uh, before unification of the states. It was English, Scotland, and Irish languages that divided, and the English as became a ruler cause they had a majority of the rules. They started ruling the Britain, and Britain was socially formed. Lastly, the Balkans. There was a problem related to Balkans. Balkans thought that the development or the independence of them was being harmed, and thus they fought against it. Balkans were to be ruled by Russia, Germany, England, just to extend their control. And in the end, there were allegories formed. For German, it was Germania, and for Italy. It was Christian de Marian. Yes, yes. Thank you. Okay, amazing. Right, visualizing the nation ke baad Aligari. Okay, amazing. That was really good enough. Very good. मैम सब तो ये इधर राइट से ही चालू हुआ मैम। Now start. मिडिल क्लास जैसे ही वो आया उसके बाद व्हाट ये लिबरल किस लिए स्टैंड करता है वो। उसके बाद कन्वर्सेशन हुई कि भाई 1850 क्या करना है नेशन के बारे में कन्वर्सेशन हुई। बाद द रिवॉल्यूशनरीज आए, उसके बाद रिवॉल्यूशन 1830 1848 तक, फिर द रिमूवल ऑफ नहीं मैम एक मिनट Yeah, sure, beta. इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग। लोगों ने सोचा कि भाई हमारे देश के लोगों के ये फीलिंग्स नहीं होगी हमारे देश के लिए, तो मतलब देश आगे नहीं बढ़ता। फिर उसके बाद हंगर और हार्डशिप, मतलब लोगों के पास कुछ नहीं था, वो सब हो गया। उसके बाद है ना 18 लिबरल्स का रिवॉल्यूशन स्टार्ट हो गया। Okay. फिर द मेकिंग ऑफ इट Germany. जर्मनी एंड इटली। जर्मनी क्या बोलते हैं, जर्मनी तो हो गया था और बाकी इटली भी यूनिफाई हो गया। उसके बाद है ना स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन भी आया था कि एक जिसमें के साथ, उसके बाद ये Yes. सब खत्म। Then it was a part where it was visualizing the nation. Allegory जैसी चीजें वहाँ पे, allegory means an abstract idea that expressed person or a thing, right? One liberal, it was a freedom love, right? A kind of freedom love वहाँ पे create हो गया था, जहाँ पे जर्मनी ने जर्मेनिया, फ्रांस ने मेरेन, एंड इंडिया में जैसे हम भारत माता के नाम से वो करते हैं, that was the thing, right? So this is how it gave it some more symbols of visualizing the nations, right, Sahil? You can go for it, Advitya. You can even open it at your place so that it would be easy for you to just. I'm zooming it if you need. Yeah. Yes, Advitya, you can start with it. Okay, Dhruva, we are coming. Yes, Advitya. स्टार्टिंग में इन 1870 1789 में मैम जब वर्किंग पॉपुलेशन और जो मिडिल क्लास के लोग थे
मैम उनको भी एक अच्छे राइट्स चाहिए, उनको भी राइट्स चाहिए था, तो उन्होंने एक अपना खुद का एक सोशल ग्रुप बना लिया था। और फिर बाद में अर्ली 19 में एक आइडियोलॉजी थी लिबरलाइजेशन की, जिस मतलब कि ऐसे उनको ऐसा राइट चाहिए था कि सब चीज़ में रेस्ट्रिक्शन हट जाए और उनको भी सब जगह इक्वल राइट्स मिल जाए। और फिर बाद में 1834 में ज़ोल्वरिन फॉर्म हुआ, और उस ज़ोल्वरिन जो फॉर्म हुआ था उसमें से जर्मन स्टेट्स के बहुत सारे मेंबर्स इन्वॉल्व हुए थे उस ज़ोल्वरिन में। और फिर बाद में जर्मनी, फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड एंड पोलैंड, इन इन 4 जगहों में सीक्रेट सोसाइटीज़ फॉर्म हुई थी। और ये सीक्रेट सोसाइटी मज़ीनी ने फॉर्म की थी, क्योंकि मज़ीनी मोनार्क के अपोजिशन में था। फिर और 1930 में फूड शॉर्टेज होने लगे थे और अनएम्प्लॉयमेंट हो गई थी, तो फिर लोग थे पेरिस के, वो सब सड़क पे आ गए थे और इसके लिए भी एक रेवोल्यूशन आया। और इस रेवोल्यूशन के बाद जो हैब्सबर्ग रूलर्स थे, उन्होंने ना हंगेरियंस को ऑटोनॉमी दी। ऑटोनॉमी मतलब उन्होंने उसको राइट्स दिए, सब कुछ दे दिया, और उन्हें खुद का एक गवर्नमेंट बनाने का मौका दिया। Yes. रिवोल्ट किया और अनएम्प्लॉयमेंट, पीजेंट्स, वर्कर्स और यूरोपियन कंट्रीज में जो पुअर ये सब थे, उन्होंने 1848 में रिवोल्यूशन लाया। और वो रिवोल्यूशन में उन्होंने एजुकेटेड मिडिल क्लास पीपल ने उनकी हेल्प की थी, और तभी उनको हैब्सबर्ग ने ऑटोनॉमी दी थी। फिर बाद में नेशन बिल्डिंग प्रोसेस हुआ, Mm-hmm. जिसमें सबसे ज़्यादा पावर पर्शियन स्टेट के पास था, वो डोमिनेंट थी पूरी। Mm-hmm. पर्शिया ने सबके लिए से एक गोल सेट कर दिया था कि वो इस तो मतलब कि पूरी जर्मनी पर्शिया को फॉलो करने लगी, पर्शिया के रूल्स एंड रेगुलेशन। और फिर मिडल 19th सेंचुरी में इटली जो थी लास्ट में, वो डिवाइड हो गई 7 स्टेट्स में। उसमें से एक सार्डिनिया, पेडमोंट था, जो कि इटालियन प्रिंसली हाउस से रूल हुआ करता था। बस इतना ही। Okay. Good. Yes, Dhruva. So as we can see that the nationalism in Europe starts with the romantic imagination and the national feeling. Ma'am, in this, all the poets and artists tried to Dhruva, you are muted, beta. sorry ma'am. Yeah. मैम रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग। मैम इसमें सारे जो आर्टिस्ट और पोएट थे फ्रांस के, उन्होंने बहुत सारे लोगों को जो भी इलिटरेट थे उनको समझाने की कोशिश की। मतलब उन्होंने ऐसा कोशिश किया कि उनके पोएम्स और स्टोरीज और सॉन्ग्स और ये सब से लोग समझे कि नेशनल फीलिंग क्या होती है। मैम उसके बाद हंगर हार्ट्सविन पॉपुलर रिवॉल्ट में 1830s के आसपास पेरिस में जो भी लोग थे उन पे फूड शॉर्टेज आया और क्रॉप फेलियर हुआ और अनएम्प्लॉयमेंट वाइड स्प्रेड हो गया, जिसकी वजह से सारे जो लोग थे उनके पास कोई काम नहीं बचा था। और 1848 में द रिवॉल्यूशन ऑफ लिबरल्स, उसमें सारे जो पुअर लोग थे, अनएम्प्लॉयड और पीजेंट्स और वर्कर्स जो थे, उन्होंने अपने राइट्स के लिए लड़ाई की। And then in the idea of French Revolution and the idea of nation में एरिस्टोक्रेसी और न्यू मिडिल क्लास उस टाइम पे एक ऐसा ग्रुप था जो उस टाइम पे एमर्ज हुआ था। और एरिस्टोक्रेसी बहुत ही पैसे वाले लोगों को माना जाता था। उसमें एरिस्टोक्रेसी के पास बहुत सारे प्रिविलेजेस थे और जो न्यू मिडिल क्लास थे वो अपने राइट्स के लिए लड़ता रहा था। और वर्किंग क्लास और मिडिल क्लास ने अपने न्यू सोशल ग्रुप्स बनाए थे, जिसकी वजह से वो अपने राइट्स के लिए लड़ सके।
फिर उसके बाद नेपोलियन ने अपना कोड नेपोलियन एक कोड बनाया 1804 में, और उसमें जो भी ट्रेड बैरियर्स थे वो हटा दिए गए थे। फिर बहुत सारे प्रिविलेजेस तो बेस्ड ऑन बर्थ जो प्रिविलेजेस थे वो हटा दिए गए थे, और सभी लोगों को इक्वल राइट दिए जाने लगे। फिर उसके बाद यूनिवर्सल सफरेज जैसा कुछ उसने इंट्रोड्यूस किया था, जिसकी वजह से सारे जो लोग हैं उनको इक्वल राइट्स मिल सके, पॉलिटिकल राइट्स और सब कुछ मिल सके। लेकिन मेंस के लिए ही ये सब कुछ था, विमेन्स के लिए कुछ प्रॉपर राइट्स किसी ने नहीं बनाए थे। फिर मेकिंग ऑफ इटली एंड जर्मनी, तो जर्मनी जो था उसका जो प्रोसेस था वो पूरा रिवॉल्यूशंस पे बेस्ड था। इटली जो था वो एट द मिडल ऑफ 19th सेंचुरी वो 7 स्टेट्स में डिवाइडेड था, और उसमें से सिर्फ एक स्टेट जो था सार्डिनिया पिएडमोंट वाला, वो ही सिर्फ इटालियन प्रिंसली हाउस रूल करते थे। बाकी जो सारे थे वो बर्बन किंग्स और वैसे सब रूल करते थे। फिर ब्रिटेन मेकिंग ऑफ यूनिफिकेशन में ब्रिटेन का भी यूनिफिकेशन हुआ था। ब्रिटेन में बहुत सारे लोगों ने रिवॉल्यूशंस करके अपने राइट्स के लिए लड़ाई की थी, और फिर एक्ट ऑफ यूनियन 1707 से द ग्रेट ब्रिटेन जो है वो यूनिफाइड हो गया था। और मैम फिर लास्ट में विजुअलाइजिंग द नेशन में लोगों ने ऐसे एक फीमेल एलिगरीज बनाए थे जिसकी वजह से पब्लिक यूनिटी जो है वो बनी रहे। और फ्रेंच की जो एलिगरी थी उसका नाम मरेनी था, और वो ट्राई कलर फ्लैग था उसके पास, उसके स्टैचू में ट्राई कलर फ्लैग था। रेड कैप थी जो सिंबलाइज करती थी उसके हीरोइज्म को। और जर्मनी की एलिगरी का नाम जर्मेनिया था, जो उसने अपने हेड पे एक ओक लीव्स का क्रोन पहना हुआ था, जो उसके हीरोइज्म और लिबर्टी को सिंबलाइज करती थी। Amazing. Very good. Pranjal. The rise of nationalism in Europe, the aristocracy and new middle class. In 1789 जो members थे इस class के वो लोग है ना common way से unite हो गए थे, और जो working class population थी और जो middle class population थी उन्होंने ना नए नए social groups बनाए थे। Ideas of national unity in early 19th century. यूरोप जो था वो आइडियोलॉजी लिबरलिज्म है उसके जो आइडिया से काफी क्लोजली अलाइड हो गया था। और इन 1834 अ कस्टम यूनियन और ज़ोल्वरिन वाज फॉर्म्ड, और उसके अंदर जो एक मेजर इशू लिया गया था सॉल्व के लिए वो था फ्रीडम ऑफ प्रेस, क्योंकि उस टाइम पे प्रेस की फ्रीडम नहीं थी, बिकॉज जो मोनार्की चाहती थी वही पब्लिश होता था। द रिवॉल्यूशनरीज जो सीक्रेट सोसाइटीज थी वो सेटअप की गई थी जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, पोलैंड और मजीनी में, ताकि वो मोनार्की को अपोज कर सके क्योंकि वो डेमोक्रेसी के फेवर में थे। एज ऑफ रेवोल्यूशंस 1830 एंड 1848। 1930s में ना फूड की शॉर्टेज हो गई थी और बहुत वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट हो गया था, जिसकी वजह से पेरिस की पॉपुलेशन थी वो रोड्स पे आ गई थी। और जो रिवोल्ट्स के पैरेलल जो पुअर अनएम्प्लॉयड लोग थे और स्टार्विंग पीजेंट्स थे और बहुत सारे वर्कर्स जो यूरोपियन कंट्रीज में थे, वो 1848 में उन्होंने एक रिवॉल्यूशन लीड किया था। जो रेवोल्यूशन लीड किया था वो था एजुकेटेड मिडिल क्लास। जर्मनी में नेशनल बिल्डिंग प्रोसेस चालू हो गई थी, और इटली जो था वो यूनिफाई हो गया था 19th सेंचुरी के मिडल में। इटली जो था वो 7 स्टेट्स में डिवाइड कर दिया गया था, जिसके अंदर जो एक स्टेट था सार्डिनिया पिएडमोंट, वही सिर्फ एक इटालियन प्रिंसली हाउस के अंदर था। एक्ट ऑफ यूनियन 1707 जो इंग्लैंड और स्कॉटलैंड था वो यूनाइटेड किंगडम, मतलब उनके बीच में जो डिस्प्यूट थे उसकी वजह से यूनाइटेड किंगडम का फॉर्मेशन हुआ था। नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म, each power, Russia, Germany, England, Austro-Hungary, was keen on countering the hold of other powers over the Balkans or extending its control over the area. मतलब वो लोग जो अपना कंट्रोल थे वो उस एरिया पे एक्सटेंड करते गए थे। Visualizing the nation, the female form that was chosen to personify the nation sought to give the abstract idea of nation a concrete form. In Germany, Germania was chosen as an allegory, and Italy allegory of Christmas Mariana was chosen. For France. I'm done. Okay. Fine. मैम Yes. मैंने भी You can start with it. द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, उसमें सबसे पहले आता है फ्रेंच रिवॉल्यूशन और उसके आइडिया, एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास।
जो 1789 में मेंबर्स जो थे उस क्लास के, उनकी कॉमन वे था लाइफ जीने का, और है ना वर्किंग क्लास पॉपुलेशन और मिडिल क्लास ने न्यू सोशल ग्रुप बनाए थे। जो आइडिया से नेशनल यूनिटी का वो चालू हो गया था 19th सेंचुरी से। 1834 में कस्टम यूनियंस और जोल्वेरियन बना था, जिसमें प्रूशिया ने ज्वाइन किया था सबसे पहले, फिर बाद में जर्मन स्टेट ने भी ज्वाइन किया। सीक्रेट सोसाइटीज बनाई जा रही थी जर्मनी में, फ्रांस में, स्विट्जरलैंड में, पोलैंड में। मजीनी ने इटली में सोसाइटी बनाई थी क्योंकि वो मोनार्की के अपोज था। और Yes, yes. 1830 में फूड शॉर्टेज हो गया क्योंकि क्रॉप फेल हो गए थे और पॉपुलेशन बढ़ती जा रही थी, और इस कारण अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ती जा रही थी। Yes. यूनिफिकेशन में जो प्रूशिया था वो डोमिनेट था। प्रूशिया के जो जंकर थे उन्होंने जर्मनी को यूनिफाई में मदद की। उन्होंने 7 साल तक उनकी 3 वॉर्स चली थी। Yes. 19th सेंचुरी में उसके 7 स्टेट्स थे उसके साथ, और जो सरदानिया था ना वो इटली के अंडर में था। फिर गेसिपी गरीबादी जो था वो मूवमेंट को लीड कर रहा था। Mm-hmm. ब्रिटिश में ना बहुत सारे एथनिक वंस थे, जैसे इंग्लिश, स्कॉट और आयरिश। Yes. इंग्लैंड और स्कॉटलैंड ने एक एक्ट साइन किया था जिसका नाम है एक्ट ऑफ यूनियन 1707। Hmm. और विजुअलाइजिंग द नेचर में फीमेल एलिगरीज बनाई जा रही थी, जिसमें फ्रांस की मेरियन था और जर्मनी की जर्मेनिया। Yeah. Thank you. Okay. Okay. Very good. Fine. Good. It's visible. Yes, beta, it's visible. First, in the Age of Revolution was from 1830 to 1848, which had romantic imagination. It collection of local flower was not to just recover the national spirit, but have the modern messages from the audience who are illiterate. Then hunger and hardship. In 1830, the food shortage brought people on the roads and make them unemployed. Revolution of liberals. In the year 1848, a revolution was led by the educated middle class. Habsburg ruler and the Habsburg ruler granted the autonomy to Hungarians in the year 1867. And Italy was unified in middle of 19th century, and Italy was divided into 7 states which were ruled by Italian princely house. A strange case of Britain. British were ethnic ones. The Act of Union, which was between England and Scotland, resulted the formation of UK of Great Britain. Then visualizing the nation, the female form was chosen to personify nation. Yes. Was chosen to personify the nation. In German, it was chosen Germania, and